Next, we are talking problems on bond valuation. So PDF you can download. So let us see question number 1. So even I am writing question here also. So we are given that Mr. Rohit is willing to purchase 5-year rupees 1000 par value public sector undertaking bond. It means we are given that so Mr. Rohit wants to buy a bond of rupees 1000. So it means this is our face value and this is a 5-year bond having coupon rate of 9%. So rate of interest which is called coupon rate, that is 9%, and his required rate of return is 10%. So this is given to us required return by investor who is Mr. Rohit. So that is 10%. So how much Mr. Rohit should pay to purchase a bond if it matures at par? So redemption will be at par. Redemption is at par. So we have to find out if Mr. Rohit wants to buy this bond, how much price he has to pay. So since price is not given, so it means price to be paid by investor will be equal to its intrinsic value, which is also called as true value of a bond. So let us draw time scale. So Rohit is buying a bond, rupees 1000, 5-year bond. So it means today is 0 time period. So life of a bond is 5 years. Face value is given, rupees 1000. Purchase price is given, not given. So this we have to calculate. So in the future you will get 9% interest. So every year, so it means annual income is 9% of 1000 rupees, which is 90 rupees. Redemption is at par, which is also 1000. Required return is denoted by small r, which is 10%. So it is simple type of bond, right? So it will mature after 5 years, redeemable bond. So what is the value? Value is equal to present value of future benefits. You can show the table year. So years are 1 to 5 years and to 5 years. Then you write what will be future benefit from this bond, and this is in rupees. 90 rupees every year you will get, then you will get redemption value 1000, PV factor which is required return 10%. So that will be single factor for 50 year 0.621, and cumulative factor which is from gross total in calculator for 5 year it is 3.791. So which we have seen in the last lecture, how to compute this PV factor. 1 divided by 1.1 press equal to 1 time, 2 time, 3 time, 4 time, this is 5 time, and take this gross total. So now you calculate present value. So present value is our 90 into 3.791, which is 341.19 and 621. So what is value of this bond? Plus 621. This is 962.19 rupees. This is what they are asking. Let us say next question number second. आप पोस्ट करके राइट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन. सेकंड क्वेश्चन वी आर गिवन, so a bond will pay rupees 70 interest annually. So we are given that a bond will pay rupees 70 interest annually, and for the whole life of investor.
So life is our whole life. And how much is whole life? What would be its value if current yield is 8%? Value we have to find out. Current yield, that is 8%. तो करंट को क्या है, आज की डेट में जो इन्वेस्टर को रिटर्न चाहिए मिनिमम, that is 8%. उसमें लाइफ मेंशन नहीं किए, तो इट मीन्स ये परपेचुअल बॉन्ड माना जाएगा आपका. टाइम स्केल है इसका, टाइम पीरियड 0. एंड जो फेस वैल्यू देखो आपको मेंशन की किसी बॉन्ड, जो क्वेश्चन साइलेंट है, फेस वैल्यू मेंशन नहीं की, तो वो हम लेंगे उसकी ₹1000. तो आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. लाइफ आपकी इन्फिनिटी मानी जाएगी, मेंशन नहीं की. एनुअल इनकम आपको मिल रही है ₹70. रिक्वायर्ड रिटर्न है आपके 8%. तो देखिए तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा ये, जब लाइफ नहीं की इन्फिनिटी है, जिसे कहा जो परपेचुअल बॉन्ड. तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड? वैल्यू का फार्मूला था, वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड इज एनुअल इनकम डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रिटर्न. एनुअल इनकम है आपकी 70, आर है 8%. तो 8% को हम मेंशन कर सकते हैं 0.08. तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी रुपीज़ में, देखिए 70 डिवाइडेड बाय 8%, 875. दिस इज वैल्यू ऑफ बॉन्ड. तो पहला क्वेश्चन देखा हमने रीजनेबल बॉन्ड था, सेकंड था आपका परपेचुअल बॉन्ड. क्वेश्चन नंबर 3. तो दिस इज गिवन अ कंपनी हैज ₹100 इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. तो ये भी नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, ऑन विच इट पेज डिविडेंड ₹9. तो इट मीन्स कंपनी हैज ₹100 विच इज नॉन रिडीमेबल preference share, so on which dividend is ₹9. So dividend per share is ₹9. So assume this type of preference share is currently yielding a dividend of 11%. तो इस टाइप के डिविडेंड के ऊपर आपको करंट जो यील्ड मिल रही है, करंट यील्ड, तो दैट इज 11%. इट मीन्स इन्वेस्टर के ये बन गए मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न जो उसको मिलनी चाहिए. करंट चीज होती है जो मार्केट में रिटर्न चल रही है आज की डेट में. तो डिविडेंड ₹9 है, 100 फेस वैल्यू है, 11% आपकी है रिक्वायर्ड रिटर्न. तो वट इज वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर? तो उसका भी आप टाइम स्लिप बना सकते हैं. तो 0 पीरियड है, फेस वैल्यू मेंशन नहीं की, प्रेफरेंस शेयर 100. और एनुअल इनकम है आपकी ₹9, रिक्वायर्ड रिटर्न है 11%. लाइफ इज नॉट गिवन, तो इट विल बी इन्फिनिटी. तो ये भी परपेचुअल बन जाएगा, यही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा वैल्यू का A/R. तो इन दिस केस व्हाट इज वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर? तो A इज 9/11%, देखिए 9/0.11, दैट इज इक्वल टू रुपीज. तो 9 को आप डिवाइड कीजिए 11%, जिसे 81.82 रुपीज. दिस इज वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर. तो क्वेश्चन 4 हमने कल लास्ट टाइम डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5. In this question we are given ₹100 par value bond bears a coupon rate of 12%. मीन्स एक आपको बॉन्ड दिया है 12% बॉन्ड. तो फेस वैल्यू इज ₹100. दिस इज टाइम पीरियड 0 एंड मैच्योर्स आफ्टर 6 ईयर एंड दिस लाइफ इज गिवन 6 ईयर. तो इंटरेस्ट इज पेबल क्वार्टरली. पर इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा क्वार्टरली. इंटरेस्ट इज पेबल क्वार्टरली. एंड कंप्यूट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इफ रिक्वायर्ड रिटर्न इज 11%. इसमें जो रिक्वायर्ड रिटर्न है जैसे 11%,
ये रिटर्न हमेशा पर एनम होती है। तो अब इसमें क्वार्टरली है, जैसे हमने अभी लास्ट टाइम किया था हाफ ईयरली का केस, तो उसमें हाफ ईयरली में पीरियड्स आपके डबल हो रहे थे, रिक्वायर्ड रिटर्न हाफ हो रही थी, एनुअल इनकम भी आपकी हाफ हो रही थी। अब इसमें क्वार्टरली है, तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो आपने पीरियड करने हैं 4 टाइम्स, और इनकम मिलेगी आपको 1/4, और जो रिक्वायर्ड रिटर्न है वो भी 1/4 हो जाएगी। तो आप इसका टेबल ड्रॉ कीजिए। तो अब आपको यहाँ मेंशन करना है पहले पीरियड। तो पीरियड है आपका ऑफ क्वार्टर, तो 1 to 24 क्वार्टर्स बन जाएंगे 6 ईयर में, और लास्ट क्वार्टर है 24। तो फ्यूचर में आपको कितना बेनिफिट मिलेगा रुपीज में? तो बेनिफिट है आपको इंटरेस्ट मिलेगा 12%, तो क्वार्टरली हो गया 3%, इट मीन्स 3 रुपीज। लास्ट में मिलेगी रिडेम्पशन वैल्यू। देन पीवी फैक्टर, तो आर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं पर क्वार्टर इंटू 3/12। तो 3 महीने का कितना इंटरेस्ट है, दिस इज 2.75%। अब इसके बेस पर आप पीवी फैक्टर कैलकुलेट कीजिए। पीवी फैक्टर का फार्मूला है आपका 1/1 प्लस आर, 1.0275, पावर ये 24, तो पावर आपको लेनी है 24। तो आप कैलकुलेटर लीजिए, 1 को डिवाइड कीजिए 1.0275, 24 टाइम्स, तो आपने इक्वल टू प्रेस करना है 24। तो आपका सिंगल फैक्टर आ रहा है 2.75%, और 24 पीरियड जिसे जो 0.5215। एक आपको चाहिए, ये बन गई आपकी एनपी, जब आपको इक्वल बेनिफिट मिल रहा है। इसका कर लीजिए आप ग्रोस टोटल 17.4, दिस विल बी अवर प्रेजेंट वैल्यू। अमाउंट चल रहा है आपका रुपीज में 17.4 इंटू 3, 52.20 एंड 52.15, तो वैल्यू इज 104.35, जिस वैल्यू इन 0 टाइम पीरियड। राइट, तो इसमें हमने देखा क्वार्टरली आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो आपने पीरियड्स को बना देना है क्वार्टर्स, और रिक्वायर्ड रिटर्न है वो भी पर क्वार्टर हो जाएगी, और जो इनकम आपको मिलेगी दैट विल बी आल्सो पर क्वार्टर 3 मंथ्स। तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। So in this we are given a company bonds have a par value ₹100, maturity is 7 year, तो आपको फेस वैल्यू दी है दैट इज 100, लाइफ इज 7 ईयर, एंड इट कैरीज कूपन रेट ऑफ 12%, तो इंटरेस्ट है आपका 12%, एंड किसी पेबल सेमी एनुअली, बट आपको इंटरेस्ट मिलेगा पेबल सेमी एनुअली, इट मीन्स हाफ ईयरली। The bond will be redeemed in 3 installments of 30, 30 and 40 at the end of 5, 6 and 7 year respectively। पर बॉन्ड आपका रिडीम होगा इंस्टॉलमेंट्स में एट एंड ऑफ 5th ईयर, 6th ईयर एंड 7th ईयर। हाउ मच रिडेम्पशन वैल्यू, जिस इज 30, 30 एंड 40। तो 3 इंस्टॉलमेंट में आपका बॉन्ड रिडीम हो रहा है 5th, 6th और 7th ईयर में, और इंटरेस्ट आपको मिलेगा हाफ ईयरली इसमें। And then if appropriate discount rate is 10%, तो इसमें डिस्काउंट रेट को भी हम यही कहते हैं कि मार्केट में कितना रेट चल रहा है, दिस इज आल्सो कॉल्ड रिक्वायर्ड रिटर्न। तो दिस रिक्वायर्ड रिटर्न इज 10%। सो व्हाट प्राइस शुड द बॉन्ड कमांड इन द मार्केट, तो आपको प्राइस बताना है बॉन्ड का कितना चल रहा है आज की डेट में, प्राइस ऑफ बॉन्ड इन मार्केट। तो ये जो भी हम ये प्राइस निकाल रहे हैं वो हम निकाल रहे हैं आज की डेट से, 0 टाइम पीरियड में, कि आज मार्केट में क्या प्राइस है। तो जैसे आपको जब नहीं दिया होता है तो हम एज्यूम करते हैं जो इसकी ट्रू वैल्यू बनती है दैट इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू, तो समझो वही आपका मार्केट में प्राइस चल रहा है।
अब इसमें देखो आपकी इनकम जो है इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा, रिडेम्पशन इंस्टॉलमेंट में हो रही है, तो जब कुछ रिडीम हो जाएगा उसके बाद इंटरेस्ट आपको मिलता है बैलेंस अमाउंट के ऊपर, और इसमें इंटरेस्ट हाफ ईयरली भी है। तो देखते हैं इसका टेबल देखो कैसे बनेगा। तो पहले आप ले सकते हैं, पहले 5 साल में हाफ ईयरली आपको इंटरेस्ट मिल रहा है रेगुलर, वो तो मिल रहा है 100 के ऊपर 12% हाफ ईयरली। तो 5 साल के बन गए समझो आपके 10 पीरियड। तो हम ले रहे हैं पीरियड, उसको आप लिखिए दिस इज ऑफ हाफ ईयर। तो हाफ ईयर का हमारा एक पीरियड है। तो पहले पीरियड आ गए आपके 1 to 10। फिफ्थ, अब फिफ्थ ईयर में आपको रिडेम्पशन में मिलेगी, वो बन गया आपका 10th पीरियड। फिर आपको 5.5 ईयर में 6 महीने बाद इंटरेस्ट में मिलेगा, वो बन जाएगा आपका 11th पीरियड। फिर 6 ईयर बन गया आपका 12 पीरियड। फिर 6.5 बन गया आपका 13 पीरियड। 7th ईयर बन गया आपका 14 पीरियड। तो आपको पीरियड वाइज शो करना है। तो अब आप मेंशन कीजिए बेनिफिट में आपको क्या क्या मिलेगा। एक तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा और प्लस मिलेगी आपको रिडेम्पशन। तो पहले देखो 12% इंटरेस्ट बना आपका 100 के ऊपर, और 6 मंथ्स का जैसे कि 6 रुपीज़, ये को 6 रुपीज़ मिल जाएगा। तो 10th पीरियड मीन्स फिफ्थ ईयर का इंटरेस्ट हमने यहाँ ले लिया है, तो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, रिडेम्पशन आ जाएगी आपकी 30 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा 100 में से 30 रुपये रिडीम हो गए, बैलेंस रह गया 70। इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा 12%, 6 महीने का 4.2। ये 5.5 साल है, ये 6 ईयर है आपका। 6 ईयर में फिर रिडेम्पशन हो जाएगी 30 रुपीज़ की। तो 6 ईयर के बाद बैलेंस रह गया 70 माइनस 30 40 रुपीज़। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा आपको 12% हाफ ईयर 6 मंथ का 2.4, और फिर आपकी रिडेम्पशन हो जाएगी 40 रुपीज़। इस तरीके से हमारे टोटल बेनिफिट्स आ जाएंगे। इसका टोटल कर लीजिए आप। अब एक कॉलम बना सकते हैं टोटल बेनिफिट के 6, 30, 4.2, 34.2, 2.4, 42.4। अब इसकी आप कैलकुलेट कीजिए प्रेजेंट वैल्यू, पीवी फैक्टर है, डिस्काउंट रेट है आपका 10%, ये भी पर एनम है आपका। इसको बना लीजिए 6 मंथ का, दैट विल बी 5%, विच मीन्स पीवी फैक्टर एट 5%। तो अब ये देखिए आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले तो देखें सिंगल पीरियड वाले, या पहले चलो ये ले लेते हैं 1 to 10, इसका करेंगे ग्रोस टोटल। तो 10 पीरियड का निकालो 5% के ऊपर, 1 डिवाइडेड बाय 1.05, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब 10 आता है ना, तो यहाँ देखो दो फिगर ज़्यादा शो करता है, ये नंबर शो कर रहा है 12। तो 10 है तो 12 शो करेगा, 7 है तो 9 शो करेगा। तो आप यहाँ भी एक ध्यान रख सकते हैं। तो 10th पीरियड 10 साल का जो टोटल कर लीजिए जीटी, ये आ रहा है 7.722, 7.722। अब आपको चाहिए सिंगल सिंगल फैक्टर फॉर ईच पीरियड। ये नॉर्मली चलेगा 1 डिवाइडेड बाय 1.05 10th पीरियड का, जब ये यहाँ शो कर रहा है 12.614। बस फिर आप इसको जो करके जाइए 11th पीरियड 0.585, 0.557, 0.53, 0.505। फिर आपको करना है इन बेनिफिट्स को मल्टीप्लाई, और इसकी लेंगे हम प्रेजेंट वैल्यू। तो आप सी का टोटल भी कर सकते हैं। तो आपने करना है कैलकुलेटर में 6 को करो इंटू 7.722, 6 इंटू 7.722, इसको डाल दो मेमोरी प्लस में। नेक्स्ट टाइम ऐसे 30 इंटू 0.614 मेमोरी प्लस, 4.2 इंटू 0.585 मेमोरी प्लस। तो मेमोरी प्लस में डालना है, वो अपने आप ही ऐड होते जाएंगे। 34.2 इंटू 0.557 मेमोरी प्लस, 2.4 इंटू 0.53 मेमोरी प्लस, 42.4 इंटू 0.505 मेमोरी प्लस। इसका कर लीजिए रिकॉल मेमोरी MRC। तो जिस वैल्यू इज कमिंग 108.94।
तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी ऑफ दिस और सेमी एनुअल बोन। तो आपने देखा कि जब इंस्टॉलमेंट में रिडेम्पशन थी तो कल हमने किया था वो बिगिनिंग से ही हमने रिडीम हो रहा था लास्ट लेक्चर में, और इसमें है आपका 5th ईयर से रिडेम्पशन स्टार्ट हो रही है आपकी। तो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, तो आप नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको मेंशन किया है अब बॉन्ड है कि फॉलोइंग फीचर्स है। प्रिंसिपल है जो 1000, प्रिंसिपल होता है फेस वैल्यू। तो बॉन्ड दिया है 0 टाइम पीरियड है, फेस वैल्यू है आपकी ₹1000। ओपन इंटरेस्ट 11.5%, तो उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको 11.5%। मैच्योरिटी की 10 ईयर्स, लाइफ इज 10 ईयर। तो कॉलेबल आफ्टर 2 ईयर, तो ये कॉलेबल बॉन्ड है आपका आफ्टर 2 ईयर, एम इज इक्वल टू 2। इसका नाम था कॉल पीरियड। तो हमने किया था ना कि कॉलेबल बॉन्ड जिसमें कंपनी रिडीम कर सकती है मैच्योरिटी से पहले, वो जो पीरियड होता है उसको कहते हैं कॉल पीरियड। ये है 2 साल का। सो कॉल पेनल्टी, फिर कंपनी उसमें एक कॉल पेनल्टी पे करती है, तो कॉल पेनल्टी आपको बताई है इसमें। सो कॉल पेनल्टी गेट इज इक्वल टू 1 ईयर इंटरेस्ट, तो 1 साल का इंटरेस्ट कंपनी आपको पे करेगी एज ए पेनल्टी, 1 ईयर इंटरेस्ट। सो डिटर्मिन द फॉलोइंग, तो कुछ डिफरेंट पार्ट्स हैं इसमें। नंबर 1, इफ कंपेरेबल यील्ड्स आर 12%, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस बॉन्ड। तो कह रहे हैं कि ये मार्केट में जो यील्ड आपकी चल रही है, कंपेरेबल होता है मार्केट यील्ड, जैसे कि 12%, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड। अब देखो इस पार्ट में ये नहीं मेंशन किया कि कंपनी इसको कॉल कर रही है, इसमें ये नॉर्मल बॉन्ड माना जाएगा, 10 साल तक चलेगा, रिक्वायर्ड रिटर्न है 12%, तो आपने सिर्फ उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो लेट अस सी इस टेबल। उसमें 10 साल तक का पीरियड है, तो आपको हर साल इंटरेस्ट जो है सेम मिलेगा। यू कैन राइट ईयर एंड बेनिफिट इन रुपीज, पीवी फैक्टर एंड प्रेजेंट वैल्यू। क्योंकि सिंपल 1 to 10 ईयर, तो हर साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा और लास्ट मिलेगी रिडेम्पशन। तो इंटरेस्ट है 11.5% ऑन 1000, 115। लास्ट में रिडेम्पशन कुछ मेंशन नहीं की, तो रिडीम हो जाएगा ये फेस वैल्यू के ऊपर 1000। पीवी फैक्टर है आपका रिक्वायर्ड रिटर्न जो मार्केट में है वो है 12%। तो उसके ऊपर आप पीवी फैक्टर कैलकुलेट कीजिए 10 सालों का, जैसे 1 डिवाइडेड बाई 1.12, सिंगल फैक्टर है पहले, जिसे 0.322। इसका करके जो ग्रोस टोटल वो बन जाएगा एनुटी फैक्टर 5.65। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 115 इंटू 5.65, 649.75 एंड 322। दिस इज अवर वैल्यू इन 0 पीरियड 971। So this is our first part, number 8. The second part they are asking you, so would you expect the firm to call the bond if yield is 12%? So should the company call? So they are asking, should the company call the bond? So if required return is same 12%, which means अब कंपनी कॉल कर रही है 2 साल में, तो अब आपको टेबल ऐसे ही ड्रॉ करना है, बस हम मेंशन कर देंगे। ये सेम ही है ईयर बेनिफिट, तो यू कैन राइट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, तो 2 ही साल है, आप अलग अलग भी दे सकते हैं। तो आप देखो बेनिफिट क्या मिलेगा, तो सेकेंड में आपको बेनिफिट मिल जाएगा, एक तो इंटरेस्ट मिलेगा 115 हर साल,
फिर आपकी रिडेम्पशन हो जाएगी 1000 की, और प्लस आपको मिल जाएगी कॉल पेनल्टी 1 ईयर इंटरेस्ट, 1 साल का इंटरेस्ट और मिल जाएगा, विच इज 115। तो आपका टोटल जो बेनिफिट बनेगा 115 एंड 1230। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, पीवी फैक्टर वही है आपका 12%। तो आपको लेना है सिंगल ईयर, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर ओनली। 1 डिवाइडेड बाय 1.12 टू 1 ईयर 0.8973.797, आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो 115 इंटू 0.893, दिस वैल्यू इज 102.695। 1230 इंटू, this is cancel, so 1230 into, so okay, let's see again, 115 into this and 1230 into 0.797, this value will come in 980.31 plus 102.695, so total value is 1083, this is the value। तो इन्वेस्टर को देखो बेनिफिट हो रहा है, इन्वेस्टर को गेट मोर वैल्यू 1083 और उसका परचेज प्राइस है 1000। तो इट मीन्स यू कैन गिव डिसीजन सिंस वैल्यू इज मोर देन परचेज प्राइस, तो इट इज बेनिफिशियल फॉर इन्वेस्टर टू कॉल द बॉन्ड। तो इन्वेस्टर को बेनिफिट मिलेगा जब कंपनी कॉल करेगी बॉन्ड को। लेकिन देन वी हैव नंबर थर्ड पॉइंट, इसमें 4 पार्ट्स हैं। तो नंबर सी पॉइंट, so if you expect to get a bond will be called after 3 years, अब आपको ये कि जो कॉल पीरियड है वो है आपका 3 साल का। तो कंपनी कॉल करती है बॉन्ड को आफ्टर 3 ईयर्स, बट इज द प्राइस यू विल पे फॉर द बॉन्ड इफ द करंट मार्केट इंटरेस्ट रेट इज 8%, और जो करंट यील्ड है आपकी वो भी चेंज है अब इसमें। अब करंट यील्ड आपकी है 8%। तो आपको देखना है क्या बेनिफिशियल है ये ऑफर आपकी, यदि कंपनी 3 साल में कॉल करती है और मार्केट यील्ड आगे 8% चल रही है। अगेन यू ड्रॉ सेम, इसमें अब इसमें आपकी लाइफ 3 साल मानी जाएगी। आपको लेना है किसी के सी पार्ट ईयर में, तो ईयर है 1 2 3 को कंबाइन कर देते हैं, 3 ईयर है। बेनिफिट आपको इंटरेस्ट मिलेगा 11.5%, वो 115 ही है। रिडेम्पशन मिलेगी आपको और प्लस कॉल पेनल्टी मिलेगी 115, 1 साल का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। अब आपको पीवी फैक्टर लेना है 8% है, किसी के 8% एंड किसी फॉर 3 ईयर्स, 3 साल का है आपका। तो लेट अस कैलकुलेट दिस फैक्टर। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.08 1 2 3 0.794, सिंगल फैक्टर है 794, और 3 साल का है एन्युटी फैक्टर 2.577। So what is value 2.577 into 115, 296.36, and this is 1115 into 0.794, so 885.31. So value of bond is coming to be, this is 1182 round figure। तो ये भी बेटर है आपका, वो वैल्यू इज मोर देन परचेज प्राइस, सो इट इज कंपनी शुड कॉल आफ्टर 3 ईयर्स, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। इसी में से लास्ट पार्ट है आपका, 4th पार्ट है। So it is saying if bond is expected to be called after 5 years, अब bond का जो कॉल पीरियड है if it is 5 years, it is 5 years, मीन्स कंपनी की कॉल करती है 5 साल के बाद, एंड द बॉन्ड इज करंटली अवेलेबल है तो 1050, और जो करंट प्राइस है परचेज प्राइस P0 वो है आपका 1050,
एंड व्हाट इज द मिनिमम प्राइस यू एक्सपेक्ट टू रिसीव फ्रॉम बॉन्ड आफ्टर 5 ईयर। तो आपको कितना प्राइस है, मिनिमम प्राइस रिसीवेबल को इन्वेस्टर को कितना प्राइस मिलना चाहिए रिसीवेबल आफ्टर 5 ईयर। तो ये आपका मिसिंग है, तो ये आपने फाइंड आउट करना है। मीन्स है कि आपको यही बॉन्ड मिलता है आज की डेट में 1050 में, अगर कंपनी कॉल करती है 5 साल में, तो कितना प्राइस आपको मिलना चाहिए 5 साल के बाद। इफ करंट रिटर्न इज 8% और जो रिक्वायर्ड रिटर्न है वो है आपकी 8%। तो मिनिमम प्राइस क्या मिलना चाहिए आपको जो वैल्यू है वो कम से कम इतनी होनी चाहिए P0 पे। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू P0। तो आपकी अब आप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं पहले 5 साल के लिए, तो यही सेम चलेगा आपका। तो 1 to 5 ईयर एंड टू 5 ईयर, तो 5 साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा 11.5%, 115। रिडेम्पशन, अब इसमें रिडेम्पशन मिसिंग है। वो यही पूछ रहे हैं कि कितनी रिडेम्पशन आपको मिलनी चाहिए, कितना प्राइस मिलना चाहिए कम से कम 5 साल के बाद। लेके से 1000 प्लस पेनल्टी भी मिलेगी 115 की। पीवी फैक्टर है आपका 8%, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एट 8%। 1 2 3 4 5.681 और ये टोटल ग्रोस टोटल है 3.993। तो वैल्यू 115 इंटू 3.993, दिस इज 459.195। so r into 0.681 r plus 115 into 0.681 78.315। तो ये टोटल वैल्यू बन गई आपकी V0। तो 0.681 r प्लस दिस जिसे 537.51। तो अब आप अप्लाई कीजिए, ये जो वैल्यू है कम से कम ये P0 के इक्वल होनी चाहिए 1050 नाउ। तो V0 is how much 0.681 r plus 537.51 should be greater than equal to 1050। तो सॉल्व करके आपका r आ जाएगा 0.681 r greater than equal to, this will go here minus 1050, so 512। So it means redemption should be greater than or equal to just divided by 0.681, this is 752.56। मिनिमम इतनी रिडेम्पशन वैल्यू आपको मिलनी चाहिए, देन इट विल बी बेनिफिशियल। तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चन पहले आप खुद ट्राई कीजिए, देन यू चेक योर सोल्यूशन। तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी।